اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا، دریافت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ تو اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور محبوب عمل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسم خزاں تھا، پتجھڑ کا موسم، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پتجھڑ کا موسم، موسم خزاں تھا، پتجھڑ کا موسم تھا۔ اللہ کے رسول اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ نے آنے کے بعد درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور انہیں ہلایا۔ جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، موسم خزاں ہوتا ہے، تو ہلکی سی ہوا سے درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، ہلکی ہوا چلتی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے اور درخت کے پتے گرنے لگتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں۔ حضور نے دو ٹہنیوں کو پکڑا اور اسے ہلایا تو ٹہنیوں کے جو پتے تھے وہ گرنے لگے، جھڑنے لگے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، حضرت ابو ذر فرماتے میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، جس طرح اس ٹہنی کے پتے ہلانے سے جھڑ گئے، موسم خزاں سے پتے جھڑ رہے ہیں، اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی خوشی کے لیے عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو جس طرح اس کے پتے جھڑ گئے، اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ مومن اللہ کی خوشی کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے، ویسے ہی اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے سے کوئی نہر جاری ہو، دروازے سے کسی کے کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، نہائے، تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے مقدس رسول نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جو بندہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے جسم پر گناہوں کا میل نہیں باقی رہتا۔ جس طرح نہانے والے کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا، وہ صاف ستھرا شفاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو بندہ مومن 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم پر گناہوں کا میل باقی نہیں رہتا، وہ گناہوں سے پاک، صاف، شفاف ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ خود میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب کوئی بندہ مومن جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرے سرکار کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو؟ جس چیز سے ہمارے نبی کو ٹھنڈک ملے وہ نماز ہے، اور ایک بندہ مومن کا یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ تو اے مسلمانوں، نماز کی پابندی ایک اہم ضرورت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو گناہوں میں ہوتا ہے، اور جب وہ نماز سے باہر نکلتا ہے تو پوری طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یہ تو احادیث کریمہ ہیں جس میں نمازوں کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم صالحین بزرگان دین کا عمل بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ
किस तरह शौक और ज़ौक़ के साथ अल्लाह के हुजूर खड़ा हुआ करते थे, किस तरह नमाजों के पाबंद थे, किस तरह नमाज़ें अदा किया करते थे। सैयदना सरकार गौसे आज़म पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि या शेख, बड़ा परेशान हाल हूँ, तंगदस्ती का आलम है, मुसीबत में हूँ, कारोबार चल नहीं रहा, तंगदस्ती का हाल है, कुछ दुआ बता दें, कुछ वजीफा बता दें, कुछ अमल बता दें, कोई तारीज, कोई नक्श लिख कर दे दें। कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, बिजनेस बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है, घर में फाके की नौबत आ चुकी है, फाका कशी चल रही है, कारोबार बिल्कुल बंद है। सैयदना सरकार गौसे आज़म पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे इरशाद फरमाया, है बंदे ये बता, क्या तेरा घर शाहराह पर है, रास्ते पर है, लोगों की गुजरगाह पर है? तेरा घर रास्ते के ऊपर है, मेन सड़क पर है, रास्ते में है? वो शख्स कहने लगा, जी सरकार, मेरा घर रास्ते पर पड़ता है। हुजूर गौसे आज़म पिराने पीर ने उससे कहा कि जाओ और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो। परेशानी क्या लेकर आया था कि मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मामला चौपट पड़ा है, घर में फाके की नौबत है, तंगदस्ती है, बड़े परेशानी का आलम है, बड़ी मुसीबत का हाल है, कोई तावीज़, कोई नक्श दे दे। मगर इलाज क्या बताया जा रहा है कि दरवाजे पर पर्दा डाल दो। बीमारी कुछ है मगर बज़ाहिर इलाज कुछ और हो रहा है। मगर अच्छा तबीब, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बीमारी को जड़ से खत्म कर दे, जो बीमारी को, वो बीमारी मरीज के मर्ज को पहचान कर उसका इलाज करे और मर्ज को जड़ से खत्म कर दे, वो अच्छा तबीब होता है। हुजूर गौसे आज़म की निगाह वो देख रही थी जो वो बंदा नहीं देख रहा था। सरकार गौसे आज़म वो मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, वो देख रहे थे जो उस बंदे की नजरों से छुपा हुआ था, पोशीदा था। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, अपने दरवाजे पर पर्दा डाल दो। ये शख्स सोचने लगा, मैं आया था, कोई नुस्खा बताएंगे, कोई तावीज़ देंगे, कोई अमल बताएंगे, कुछ नक्श लिख कर देंगे कि ये काम करो, ये पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो, मगर ये तो अजीब मामला है। मैं शिकायत लेकर आया हूँ कि मेरा कारोबार नहीं चलता, परेशानी का हाल है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, दरवाजे पर पर्दा डाल दो। बहरहाल पिराने पीर का हुक्म था, गौसे पाक का हुक्म था, घर गया, घर जाकर अपने दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। वक्त गुजरा, कुछ महीने गुजरे, उसका कारोबार चलने लगा, बिजनेस आगे बढ़ने लगा, खूब फलने फूलने लगा, खूब कारोबार बढ़ा, घर में बरकतों का नुज़ूल होने लगा, घर में खुशहाली आ गई, तंगदस्ती चली गई, घर में खुशी का माहौल हो गया। जब कारोबार खूब चलने लगा, फलने फूलने लगा, तो एक दिन याद आया कि अपने पीर की बारगाह में कुछ तोहफा, कुछ नजराना लेकर पेश हुआ जाए। अब पहुंचा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में कुछ तोहफा, कुछ नजराना लेकर। मुरीदों की खुशी होती है कि वो अपने पीर को तोहफा दें, अपने पीर को नजराना पेश करें, ये मुरीदों को खुशी मिलती है इससे। वो पहुंचा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में, हुजूर ये नजराना, ये तोहफा। सरकार गौसे आज़म ने उसे कबूल किया। ये शख्स कहने लगा कि सरकार, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे कारोबार की परेशानी, मेरी तंगदस्ती, मेरी फकीरी, मेरी गरीबी, जिसकी मैं आपके पास जो हाजत लेकर आया था, आपने न कोई तावीज़ दिया, न कोई नक्श लिखा, न कोई वजीफा बताया, न कोई अमल बताया, न कोई तरीका बताया। कहा दरवाजे पर पर्दा डाल दो। आखिर दरवाजे पर पर्दा डालने से मेरे घर में ऐसी बरकत कैसे होने लगी, मेरे कारोबार कैसे चलने लगे? सरकार गौसे आज़म पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ बंदे सुन, तेरा दरवाजा, तेरा घर शाहराह पर है, लोगों की गुजरगाह पर है, सड़क के ऊपर है, मेन रास्ते पर है। जब उस रास्ते से लोग गुजरते हैं तो उसमें नमाजी भी गुजरते हैं, बेनमाजी भी गुजरते हैं, नमाजी भी गुजरते हैं, बेनमाजी भी गुजरते हैं। और जब किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर पर पड़ती है तो तेरे घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा दरवाजे पर पर्दा डाल दे, ताकि तेरे घर में, तेरे दरवाजे पर किसी बेनमाजी की निगाह ना पड़े। तो
अगर किसी बेनमाजी की निगाह से, गौर करने का मकाम है, किसी बेनमाजी की निगाह से घर की बरकत खत्म हो जाए, कारोबार की बरकत खत्म हो जाए, नहुसत आ जाए, तो जिस घर में सबके सब बेनमाजी रहते हो, जिस घर में सबके सब बेनमाजी रहते हो, नमाज ना पढ़ते हो, नमाज पढ़ने को अच्छा ना जानते हो या नमाज ना पढ़ते हो, उस घर में बरकतों का नुज़ूल कैसे होगा। फिर हम परेशान घूमते हैं कि हजरत कारोबार नहीं चलता, घर में बरकत नहीं आती, बिजनेस हमारा चलता नहीं, बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक धूप के थपेड़े खाते फिरते हैं, दौड़ भाग करते हैं, मगर घर में बरकत नहीं आती। तो अगर बेनमाजी की निगाह से घर की बरकत खत्म हो सकती है, तो गौर करें कि जिस घर में सब बेनमाजी रहते हो, उस घर में बरकतों का नुज़ूल कैसे होगा। अल्लाह हम सबको अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज बहुत से लोग पढ़ते हैं मगर सही तरीके से नहीं पढ़ते, जिस तरह पढ़नी चाहिए, जो हक है वो अदा नहीं करते। आपने सुना होगा, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, हज़रत मौला अली मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कि एक जंग के मौके पर आपकी पिंडली मुबारक में तीर लगा, पेवस्त हो गया। तीर ट्रायंगल होता है, जब वो दाखिल होता है, जब वो लगता है तो बड़ी तकलीफ करता है। तीर जब किसी के जिस्म में लगता है तो बड़ी तकलीफ होती है, और जब उसे निकाला जाता है तो उसकी तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल होता है। जब घुसता है तो नोक की तरफ से घुसता है, मगर जब उसे खींचा जाता है, निकाला जाता है, तो वो गोश्त को, नसों को और हड्डी को लेकर बाहर आता है। तो जितनी तकलीफ तीर लगने में होती है, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ तीर निकालने में होती है। जब मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की उस पिंडली मुबारक से तीर निकालने की कोशिश की जाती, तो आप शिद्दत तकलीफ से बेचैन हो जाते। तकलीफ की शिद्दत इतनी होती, आप बेकरार हो जाते। किसी ने कहा कि अभी रहने दो, अभी तीर मत निकालो, अभी तीर को अपनी जगह पे छोड़ दो। कहा फिर कैसे निकाला जाए? कहा जब मौला अली का ध्यान कहीं और हो, जब मौला अली की तवज्जो कहीं और हो, जब आपका ख्याल कहीं और हो, उस वक्त तीर निकाल लेना। हमने भी देखा है आज के दौर में ऑपरेशन वगैरह होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, कट लगते हैं, उस पे टाके लगाए जाते हैं, सिलाई होती है। ऑपरेशन के वक्त में डॉक्टर क्या करते हैं? बेहोश करते हैं या उस जगह को सुन कर देते हैं। क्यों? कि मरीज का ध्यान उस तकलीफ पे ना रहे, इसीलिए उसको सुन कर दिया जाता है जगह को ऑपरेशन के वक्त। और बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, मरीज को पता नहीं चलता, जब उसको होश आता है तब देखता है कि हाँ मेरा ऑपरेशन हो गया। आपने देखा होगा ऑपरेशन जब होते हैं तो मरीज को या तो सुन कर दिया जाता है, उस जगह को, उस जख्म को सुन कर दिया जाता है, या मरीज को बेहोश किया जाता है। इसलिए कि जब उस जगह पर उसका ध्यान नहीं होगा, उसका ध्यान मबजूल होगा, तो तकलीफ का एहसास कम होगा। अब मौला अली का ध्यान तकलीफ से हटकर दूसरी तरफ कहाँ जाए? तो कहने वाले ने कहा कि जब ये अल्लाह के हुजूर खड़े हो, उस वक्त तीर निकाल लेना। जब अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, नमाज के लिए खड़े हो, उस वक्त तीर निकाल लेना। कि मौला अली जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, उनकी पिंडली से तीर निकाल लिया जाता है, मौलाए कायनात को खबर भी नहीं होती, हज़रत अली को पता भी नहीं चलता। जब नमाज से फारिग हुए, पिंडली पर खून देखा, कहा ये खून कैसा है? कहा सरकार आपकी पिंडली में जो तीर लगा हुआ था उसको खींच लिया गया है, उसको निकाल लिया गया है, आपको उस वक्त तीर निकाला गया जब आप नमाज की हालत में थे। मैंने पढ़ा तो ये जब वाक़या पढ़ा तो झूम उठा के मौलाए कायनात को पता कैसे चलता। वो मौला अली जो फरमाते हैं मैं एक सजदे के बाद दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक अपने रब का दीदार ना कर लूं।